میں ہوں فریہ ادریس اینڈ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ آج ایک خصوصی پروگرام ہم کراچی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور کراچی سے، کیونکہ کراچی میں ایک دفعہ دوبارہ شب خون مارا گیا۔ کراچی کے جو باسی ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، آج ان کی صبح کا آغاز ایک الارم کلاک سے نہیں بلکہ بلاسٹ کی آواز سے ہوا۔ آس پاس کے علاقے کے لوگ یہ بتاتے ہیں، چونکہ فیز 6 میں یہ حملہ ہوا، کہ وہاں پر اتنی زور سے زمین ہلی کہ نہ صرف ان کی کچھ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں تک ٹوٹ گئیں، شیشے ٹوٹ گئے، کچھ لوگوں کے گھر اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئے۔ خود جس گھر کو ٹارگٹ بنایا گیا وہ گھر کسی عام شہری کا نہیں تھا، وہ اس شہری کا گھر تھا جو کہ اس وقت کراچی کی حفاظت کے ذمہ داروں میں سب سے جو اوپر نام لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں ہوا، اور ٹارگٹ ایک دفعہ پھر دہشت گرد نے کیا کراچی کی رونقوں کو، کراچی کی سکون کو۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال بدامنی کی طرف مسلسل رواں دوا تھی، اور پچھلے کئی دنوں سے کراچی میں ایک سے ایک اندھوناک واقعہ ہم دیکھ رہے تھے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کراچی کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا کریڈٹ ہم چیف جسٹس کو بھی دے سکتے ہیں، مگر اس سے بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہماری پولیس فورس کو، ہمارے رینجرز کو، جو دن رات کی محنت کر کے ایک ایسا آپریشن کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ، وہ عناصر جو چاہتے ہیں کہ نہ صرف کراچی کا امن و امان خراب ہو بلکہ پورے پاکستان کا امن و امان خراب ہو، ان کو ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا تھا، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا تھا۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ یقیناً بڑی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو جو کہ کراچی کا امن و امان خراب کر رہے تھے، اور انہوں نے دوبارہ ایک حملہ کیا، اور ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم صاحب کے گھر پر یہ حملہ کیا گیا، جبکہ گھر میں اگر کوئی جنگ کو فالو کرتا ہے اور اپنے آپ کو جنگجو کہتا ہے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی مہذب قوم ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو جو مہذب کہتے ہیں لوگ، وہ کبھی بھی گھروں پہ جا کر حملہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے تو پھر بھی وہ جا کے میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ گھروں میں آ کے حملہ کیا جانا، اور اس حملے کے نتیجے میں جہاں مختلف افراد ہلاک ہوئے، ان میں ایک بچے کی جان اور ایک ایسی ماں کی جان چلی گئی جو نہ صرف اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی بلکہ خود بھی اپنی ڈیوٹی پر جا رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ کون سا دشمن ہے اور یہ کس لیول کا دشمن ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم کئی دفعہ اپنی ہی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، ہم کئی دفعہ بڑھ چڑھ کے اپنی ہی اداروں کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، اور ریزن ہوتی ہے اس پہ کہ ہم کیوں ناراض ہوتے ہیں ان سے، مگر جب ادارے اچھے کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ ہم انہیں فل سپورٹ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس لیے آج ہم اسٹوڈیو سے باہر نکل کے کراچی میں موجود ہیں، اور یہاں پر آ کر ہم بڑا وارملی ویلکم کریں گے میرے خصوصی مہمان چودھری اسلم صاحب ہیں، جن کے گھر پہ آج حملہ ہوا۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا پروگرام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل شکیل صاحب، ہمیں اس کہانی کو تو کور کیا ہی، اس کے علاوہ سما ٹی وی کے سینئر رپورٹر ہیں، کرائم میں جتنی بھی امپورٹنٹ سٹوریز یہاں سے بریک ہوتی رہی ہیں فیصل صاحب کا اس میں ایک بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اور بھی لوگوں سے بات کریں گے، آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، فیس بک پر آپ یہاں پر اپنے میسیجز چھوڑ سکتے ہیں، یا آج ہمیں آپ لائیو جوائن کیجئے اور سوالات پوچھئے۔ نمبر تھوڑی دیر بعد آپ کی اسکرین پر آ جائے گا، آپ بھی یہاں پر ہم سے کویسچنز کر سکتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے چودھری صاحب، ایک تو بہت افسوس کہ آج کا جو واقعہ ہوا، یقیناً پورا پاکستان اس وقت اس بات پہ پریشان بھی ہے، آپ کی اپنی فیلنگز ہوں گی، آپ کا گھر ہے، مگر پہلا سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہی آئے گا کہ جب پولیس کا گھر نہیں محفوظ تو باقی عوام کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے کہ پولیس کا گھر نہیں محفوظ، یہ بزدل لوگ ہیں، بزدلانہ کارروائی کی ہے انہوں نے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دوران جنگ بھی نہ کوئی کسی کی بیوی بچوں کو مارے گا، عورتوں کو نہیں مارے گا، بچوں کو نہیں مارے گا، بوڑھوں کو نہیں مارے گا، درخت نہیں کاٹے گا۔ یہ ایسے بزدل لوگ ہیں، یہ بیوی بچوں پہ حملے کرتے ہیں۔ مجھے تھریٹ کال تھی، میں ہر وقت ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ مرد کے بچے ہیں تو روڈ میں آ کے میرے سے لڑیں، میں بالکل لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو بزدلوں والی حرکت ہے کہ آ کے صبح سویرے عورتوں کو مارنا، بچوں کو مارنا۔ یہ کس بات کے مسلمان ہیں؟ یہ کون سی ان میں انسانیت ہی نہیں ہے؟ یہ تو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں۔
बिल्कुल आपने कहा कि बुज़दिल लोग हैं और ये भी आपने सही फरमाया कि जो हमला है उससे हमें चैलेंज का अंदाज़ा होता है, मगर कुछ अरसा पहले अगर आपको याद हो तो सोराब गोट की एक मस्जिद थी जहाँ पर ये वार्निंग दी गई थी और कुछ लोगों के नाम लिए गए थे, उनमें बड़े अहम नाम थे, उनमें से एक बहुत अहम नाम आपका भी था और वो ख़तरनाक फतवा जो दिया गया उसमें ये बात कही गई कि ना सिर्फ आप लोगों को मारा जा सकता है बल्कि आपके घर वालों को भी मारा जा सकता है। आपको याद होगा उसके बाद क्या एक्शन लिया गया था? देखें, हमारे पास सिक्योरिटी भी थी, सब थी। अब खुद का तो कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में किसी के पास। अब ये बुज़दिलाना कार्रवाई इन्होंने आगे की सुबह सुबह। हमें सिक्योरिटी थ्रेट थे, सब कुछ था, हम इसके लिए बिल्कुल अवेयर थे कि ये रोड पे आके लड़ेंगे। और आज भी मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को ऊपर से भी कहते थे कि आप बुल प्रूफ गाड़ी रखो, मैंने कभी नहीं रखी। मेरे पास बख्तरबंद गाड़ी है, मैंने उसको भी आज तक नहीं इस्तेमाल किया और मैं आप ही के चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ कि आइंदा भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं रोड पे इनसे लड़ूंगा, इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूँगा जिन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। इसका इनको बहुत बड़ा खमेजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो सोराब गोट की मस्जिद थी उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? उस पर एक्शन लिया गया, उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई। ऐसा हुआ कि यहाँ पे 2 लड़के हमने गिरफ्तार किए, वो इधर से खुदकश लड़कों को तैयार करके ले गए थे वज़ीरिस्तान। वहाँ पे एक खुदकश हमला हो गया, उसमें 17 बच्चे मारे गए, उसमें 2 बच्चे ज़िंदा बच गए ज़ख्मी हालत में। उनको हमने गिरफ़्तार किया, उन बच्चों को भी लेके आए, उनके कोर्ट में स्टेटमेंट कराए, उनकी फैमिली के कोर्ट में स्टेटमेंट कराए। एक तो इनको ये बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ थी इस बात से। इसके अलावा एक और ग्रुप था इनका जिसको अल बदर ग्रुप कहते हैं, अल मुख्तार ग्रुप। उसने एक ब्लास्ट भी कराची में किया था और वो बहुत सारे ब्लास्ट करना चाह रहे थे। वो पूरा ग्रुप हमने पकड़ लिया था और सारा उनसे वेपन पकड़ा गया था, बहुत ज़्यादा बारूद पकड़ा गया था। उनसे बारूद पकड़ा गया था। यहाँ पे मैं आपसे इस पहले कि शर्मिला साहबा के पास आऊँ, फैसल साहब, कौन लोग हैं जो इस वक्त नासिर चौधरी साहब को टारगेट कर रहे हैं और कौन कौन लोग हैं उनकी टारगेट लिस्ट पर? ये मजहबी इंतहा पसंद है इस वक्त जो कि कराची का अमन ख़राब करना चाहते हैं। ये आपको याद होगा कि रमज़ान के आखिरी दिनों में 29 रमज़ान को अबुल हसन अस्फ़हानी रोड पर भी एक जो है वो बाइक पे जा रहे थे 2 सुसाइडर और धमाका हो गया। वो बारिश होने की वजह से बाइक स्लिप हुई थी और जो है वो एकदम से ब्लास्ट हो गया था और उसमें भी जो है वो तबाही हुई थी, लेकिन वो ख़ुद ही जो है वो मारे गए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माजी में भी कराची में ऐसे ग्रुप्स हैं और अभी भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। CID पुलिस कराची में काफ़ी फ़ाल है इनके ख़िलाफ़, इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और इनके ख़िलाफ़ ही करने की वजह से गुज़िश्ता साल जो है CID के हेड ऑफिस को जो कि सिविल लाइन में था वहाँ पर उसे निशाना बनाया गया था। और उससे 3 महीने पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पंजाब पुलिस ने एक दहशतगर्द पकड़ा था, एक ग्रुप पकड़ा था और उनके कब्ज़े से एक पेन जो है मूवी वाला वो खुफिया पेन बरामद हुआ था। बता रहे हैं ये फुटेज आप साथ देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, साथ साथ फैसल शकील साहब के पास ये खास फुटेज है जो कि इनके पास एक्वायर्ड हो गई थी और समा टीवी पे आप अभी देख सकते हैं। और इसमें आपको दिखाया जाएगा कि जो फैसल साहब बता देंगे भी डिटेल में कि किस तरीके से पहले भी प्लानिंग की गई थी CID के ऑफिस के ऊपर हमला करने की और उसकी बाकायदा प्लानिंग उस फुटेज में आप देख सकते हैं। आप बता दीजिए फैसल साहब उसमें क्या क्या है। यही हुआ था कि जैसे कि पंजाब पुलिस ने एक ग्रुप पकड़ा था, ये भी इंतहा पसंद ग्रुप था और दहशतगर्द ग्रुप था। इस ग्रुप के पास से जो है खुफिया फुटेज मिली थी CID सिविल लाइन की दफ्तर की, और वहाँ पर वो पेन से बनाई गई थी, रैकी की गई थी, जिसे हम कहते हैं निगरानी, खुफिया निगरानी के कहाँ दफ्तर है और किस तरह उसको निशाना बनाना है प्लानर्स ने। तो वो पकड़े गए थे। उनके पकड़े जाने के बाद भी जो है वो पंजाब पुलिस ने सिंध पुलिस को इत्तला दी थी बज़रिया मरासला कि आपके CID सिविल लाइन पर अटैक हो सकता है और हमने एक ग्रुप पकड़ा है, उनके कब्ज़े से ऐसी चीज़ें मिली हैं, लिहाजा CID सिविल लाइन के जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएँ। वो जैसे मरासला मिला था तो उसके 15 दिन तक तो यहाँ पर एलिट फोर्स और CID सिविल लाइन के बाहर रुकावटें ये खड़ी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक वो तमाम फोर्स हटा ली गई। उसके 2 महीने बाद जो है वो CID सिविल लाइन पे गुज़िश्ता साल अटैक हुआ और उस अटैक के नतीजे में जो है कई कीमती जानें ज़ाया हुई, पुलिस एहलकार शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। आज भी वो जो है वो ख़राब हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई माजूर हुआ। उसके बाद जो फुटेज उसके बाद 2 महीने पहले
गई। जी 2 महीने पहले उन्हीं तहरीक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो नाम नहाद तंजीम बनाई हुई है, इन्होंने जो है वो एक वीडियो रिलीज़ की और इस सीडी में वो तमाम चीज़ें बताई। उसमें बताया कि 3 जो है वो ख़ुदकश हमला आवर थे और उन्होंने जो है वो ये प्लान किया था कि हम CID सिविल लाइन जो कि इस वक्त हेड क्वार्टर बना हुआ है, इंतहा पसंदों को यहाँ पर उठा के लाया जाता है और बकौल उनके कि यहाँ पर उन्हें तशद्दुद किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, लिहाजा हमने ये प्लान किया है कि इसको हम उड़ाएंगे। तो वो तमाम उनके एतराफ़ात हैं, शक्लें मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं और वो उस गाड़ी में आ रहे हैं, वो भी फुटेज है। और उस मूवी में ही ये डिक्लेयर कर दिया था, मैं बताऊं, जो 2 महीने पहले मिल गई थी कि SSP असलम खान उन पर हम अटैक करेंगे, SSP राजा उमर खताब उन पर अटैक किया जाएगा, SSP फयाज खान और मज़हर मशवानी, इनकी बाकायदा तस्वीरें और इनको वांटेड करार दिया था और इनको बोला था कि इन्हें हम निशाना बनाएंगे। सवाल मैंने आपसे भी करना है, मगर ये 40 सवाल है, इतनी जब आपको वार्निंग्स मिल जाती हैं उसके बाद क्या तरीका कार है अपनी बचत का? जैसे वार्निंग मिलती है और इनके कुछ लोग आ जाते हैं तो हमें इतला मिल जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी शेयर करते हैं। ये तो फुटेज फैसल साहब ने जो अभी हमारे टीवी स्क्रीन पे भी चल रही है, इसमें तो साफ आपका भी नाम लिया गया, सब लोगों के नाम लिया गया, लेकिन वो तो कार्रवाई हो गई। उसके बाद जब ये आते हैं तो इनको हम गिरफ्तार करते हैं और बीच में हमने 2-3 आदमी गिरफ्तार भी किए थे जिन्होंने इसके मुतालिक बताया था कि इसमें फला आदमी हैदराबाद में मारा गया है और 2 आदमी जो है वजीरिस्तान ऊपर गए हुए हैं। लेकिन इतने लीड्स तो मिलते हैं आप लोगों को, आपकी कोई फोर्स की कमी है, विल की कमी है, क्या मसला होता है कि फिर इन लोगों को बिल्कुल पकड़ के आप लोग बंद नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल हम इनको अरेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कराची में अरेस्ट हुए हैं और सबसे कम धमाके भी कराची में हुए हैं क्योंकि इनको पहले ही पकड़ लिया गया। ये कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, अक्सर औकात ये पकड़े जाते हैं। अक्सर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ पर कराची पुलिस की 33,000 के करीब नफरी है। 33,000 में से आप 50% निकाल दें वो ऑफिस वर्क में और डे नाइट ड्यूटी में, तो ये बहुत लिमिटेड नफरी है और बहुत थोड़ी नफरी। और CID जो बनाई गई है इसमें भी नफरी और सहूलियात की कमी है तो जो इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आप हमें बता रहे हैं चौधरी साहब की मजबूरी है, ज़ाहिर है वो ये बात नहीं कह सकेंगे, लेकिन शमीरा साहब आपके समझती हैं आप लोगों ने काफ़ी सिक्योरिटी दी हुई है अपने शहरियों को, काफ़ी फोर्स दी हुई है अपनी पुलिस को, क्यों बार बार आके हम इसी बात की बात करते हैं? फैसल साहब अक्सर अपने वीपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आपके पास फोर्स की कमी है। शुक्रिया फरिया। पहले तो मैं आपको और आपकी न्यूज़ बीट की टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जहाँ आप हमने देखा अक्सर तनकीद की जाती है पुलिस एहलकारों पर और उनकी गफलत पे, वहाँ पर आप अच्छे जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं, इसमें चौधरी असलम साहब सर फहरस्त हैं, वहाँ पर आपकी टीम और आप अपने प्रोग्राम में उनको खराज तहसीन भी पेश करती हैं, अप्रिशिएट जो अच्छा काम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि और चौधरी साहब की हिम्मत को मैं दाद देती हूं कि आज सुबह उनके घर पे धमाका हुआ है और ज़ाहिरी बात है जब फैमिली के ऊपर हमला किया जाता है तो बड़े से बड़ा शख्स जो है उसका भी दिल मोम हो जाता है। लेकिन चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और ये अज़म पुरअज़म है इस वक्त भी कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखेंगे और एक रिन्यूड विगर के साथ, तो मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। साथ में जो हमारे पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन के साथ भी इज़हार यकजहती हमें दिखानी बहुत ज़रूरी है। देखिए यही पुलिस एहलकार हैं जो बहुत कम तनख्वाह में, बहुत महदूद वसाइल में सड़कों पे गलियों पे खड़े होके आम शहरी की हिफाजत करते हैं और अपनी जान दे देते हैं, शहीद होते हैं। शकील ने बिल्कुल सही बात की है कि पुलिस की जो नफरी है बिल्कुल कम है। देखिए ये जो बताइए 33,000, इसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, CID भी है, IG से लेके नीचे तक तमाम लोग भी हैं, फिर VIP ड्यूटीज़ के ऊपर भी लोग हैं। नहीं, हमने देखिए कि हम पुलिस को पावर देना चाहते हैं, नहीं पावर हमने पावर किया हुआ है। अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने 5 अरब रुपए मजीद इंजेक्ट करे हैं सिंध पुलिस के अंदर इस महकमे को बेहतर इक्विप करने के लिए, क्योंकि आपके पास हेलमेट्स नहीं है, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, आपके पास वो जदीद असला नहीं है, उसके बावजूद आप ऑनेस्टली क्या समझती हैं कि एक गिवन टाइम पे आप एक पर्टिकुलर नंबर है हमारी पुलिस के पास? बिल्कुल देखिए मैं समझती हूँ कि जो रिसोर्सेज है, मैं बिल्कुल सही आंसर देखिए हमारी पुलिस के पास बिल्कुल जितने रिसोर्स आप इंजेक्ट करेंगे कम है, क्योंकि आपका जो दुश्मन है आपसे ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा इक्विप्ड है, ज्यादा ट्रेंड है, स्टेट के रिसोर्सेज ज्यादा उनका। देखिए आप इसमें जो हम अक्सर बात करते हैं कि बैरून हाथ मुलव्वस है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि चौधरी साहब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी कलअदम तंजीम के जो लोग हैं
इनको जो असला जो इनके फाइनेंस जो मिलते हैं, बहुत सारे ऐसी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सिंपैथीज आज भी इनके साथ हैं, वो समझते हैं जहाद तो कर रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों ये को एक पूछना हकीकत चाहिए है। इनकी सिंपैथीज बिल्कुल। इनके साथ है। मगर चौधरी साहब ने क्योंकि जिक्र किया कराची में खुदकुश हमलों का,